अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 यानी कोनिक सेक्शन का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास टॉपिक है पैराबोला। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स में सर्कल को डिस्कस किया, इसमें उसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, how to drive equation of circle by given different conditions, and then equation of tangents to normal to the circle, so on. आज को इस सेक्शन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैराबोला। पैराबोला को हम इसी तरह से पहले डिफाइन करेंगे, फिर इसकी इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट क्वेश्चंस को भी हम साथ साथ देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन। इससे पहले कि हम पैराबोला की तरफ चले, सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है कोनिक सेक्शन एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। कोनिक सेक्शन को हम अगेन डिफाइन करेंगे, पैराबोला को डिफाइन करने से पहले, एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। The locus of a point which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed straight line not passing through the given fixed point is always constant is known as conic section or conic. ये फिगर आपको दी हुई है। अब मैं दोबारा कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट पढ़ूंगी और साथ हम इस फिगर को भी देखते चले जाते हैं। द लोकस ऑफ अ पॉइंट which is shown in the figure as P. The locus of a point which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point, which is F, from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed straight line, which is L, not passing through the given fixed point, which is F, is always constant, is known as a conic section. Here let L be a fixed line. This is L in a plane and F be a fixed point not on the line L. Suppose PM denotes a distance of a point PXY from the line, the set of all points in the plane such that PF divided by PM is equal to E, a positive constant. Now see this ratio. If PF is equal to 0, then E is equal to 0. Obviously PF अगर 0 होगा तो E भी 0 होगा. Locus of P is a circle. तो फिर ये locus क्या कहलाएगा? Circle. If PM is equal to 0, denominator 0 हो तो क्या होगा? E is equal to infinity. Then locus of P is pair of straight lines. If PF equal to PM, then E is equal to 1. E की वैल्यू 1 हो जाएगी डेफिनेटली जब ऊपर और नीचे दोनों क्वांटिटी सेम हो तो। Locus of P is parabola, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। If PF is greater than PM, then E is greater than 1, means locus of P is hyperbola. So locus of P की फॉर्म में हम सारे के सारे जो हमारे कोनिक सेक्शंस की जो फॉर्म्स हैं, मतलब सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला या हाइपरबोला, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। Now, equation of a parabola in the standard form. If we take the focus of the parabola as F, A0, and its directrix as line L, whose equation is equal to x is equal to minus a, means x plus a equal to 0, then its equation becomes very simple. Let P xy be a point on the parabola. So by definition क्या थी हमारे पास parabola की? PF over PM is equal to E, which is equal to 1. ये हमारे पास इसकी definition हमने पढ़ी थी. So PF over PM is equal to 1 means PF is equal to PM. PF की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं by using distance formula. And PM we have हम calculate कर सकते हैं perpendicular distance from a point to the line. So PM is equal to x plus a. इसमें वही फार्मूला पुट किया है जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, ax plus by plus c over a square plus b square under root. तो यहाँ पे a 1 है लेकिन b जो है वो 0 है, हमारे पास x plus a आ गया। तो pf हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले के तहत क्या आ गया? a के कोऑर्डिनेट्स में f के कोऑर्डिनेट्स में हमें पता है 0 और p के कोऑर्डिनेट्स x y हम सपोज किए। सो pf हमारे पास आ गया x minus a whole square plus y minus 0
होल स्क्वायर अंडर रूट। इन दोनों की वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे पी एफ इजिकल टू पी एम में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो वी गेट दिस वन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x। इसको आप स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास 4ax आ जाएगा और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax विच इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। नाउ डेफिनेशन देखें। अब हमें इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस, डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, वर्टेक्स जो कहते हैं, टेंजेंट टू द कर्व कहाँ क्या है, कॉर्ड क्या है, लेटेस्ट रेक्टम क्या है, इसी को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले क्या, द लाइन थ्रू द फोकस, द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या थी, क्या लाइन थी, जिस तरह आप ये देखिए हमारे पास ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है। हमने इससे पहले जो पैराबोला को डिफाइन किया तो यहाँ पे आपको बताया कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसका डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से रेशियो हमारे पास जो है आती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, हम इस डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। द लाइन थ्रू द फोकस, द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। फोकस ये है, इसमें से लाइन पास हो रही है, जो फोकस में से पास हो रही हो और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। सो इसी को इस वाले फिगर में हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या बन रही है, एक्स एक्सिस, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, y इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखी थी, वो क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। The point where the axis meet the parabola is called vertex। अब ये पैराबोला है जहां पे एक्सिस, ये एक्सिस एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स पैराबोला भी हमने बताया। तो जहां पे पैराबोला एक्सिस, पैराबोला ऑफ एक्सिस को मीट करेगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका वर्टेक्स। इसको क्या है, 0 0 इसका कोऑर्डिनेट्स है। द लाइन थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला हैज इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। यही हमने कहा कि एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन x इज इक्वल टू, सॉरी हमारे पास जो ये लाइन जो कि वर्टेक्स में से पास हो और परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ पैराबोला के, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टेंजेंट टू द पैराबोला। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0, और एक्सिस की इक्वेशन से हमने पहले बताया था वो y इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट ऑफ पैराबोला क्या है, the line which is perpendicular to the axis of the parabola is called the tangent to the curve at A। A means vertex। तो यहाँ पर हमें vertex शो हो रहा है, यहाँ पे मैंने O लिखा है, ये असल में A है यहाँ पे। A line joining two distinct point on a parabola is called chord। chord को भी हमने पहले भी डिफाइन किया था। देखिए ये डिफरेंट chords फिगर में नजर आ रही हैं, ये भी chord है, ये भी chord है, फोकस पे से पास होती हुई ये वाली भी chord है। तो जो फोकस में से पास होगी कॉर्ड, उसको हम फोकल कॉर्ड कहेंगे। ये भी इस तरह भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। इसकी मुख्तलिफ, यहाँ से इसको यहाँ से एस में से गुजारते हुए यहाँ तक ले जाए, कहीं बहुत सारी फोकल कार्ड्स हो सकती है। ऐसी कार्ड जो फोकस में से पास हो, क्या कहलाएगी, फोकल कार्ड। A chord passing through the focus of the parabola is called focal chord of the parabola। The focal chord perpendicular to the axis of the parabola, this is focal chord। If this focal chord is perpendicular to the axis of the parabola which is y is equal to 0, या हम इसको ऐसे भी कैसे भी, यहाँ पे x एक्सिस है, पैराबोला का एक्सिस जो है वो x एक्सिस जो हो रहा है, तो इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर हो फोकल कार्ड, तो वो क्या कहलाएगा, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। It has an equation x is equal to a and it intersects a curve at the points where y square is equal to 4a square। यहाँ पे हमने क्या क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है हमने x इज इक्वल टू a पुट किया, किस इक्वेशन में, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये हमारे पास इक्वेशन थी ना पैराबोला की। इसमें x की जगह पे a पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर, और बोथ साइड्स पे स्क्वेयरिंग करें, स्क्वायर रूट ले तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस जो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वो कौन से कोऑर्डिनेट्स, जो हमारे पास पैराबोला के 2 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है ये लेटेस्ट रेक्टम। तो अगर हमारे पास x कंपोनेंट तो इसका l ही रहेगा, दोनों a ही रहेगा दोनों सूत्रों में, जो कि फोकस के कोऑर्डिनेट है क्योंकि फोकस में से पास कर रहा है। तो y कंपोनेंट हमने इस तरह से निकाली है। लेटेस्ट रेक्टम की हमारे पास l l डैश होगा हमारे पास, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a टू a माइनस 2a। इनका जब आप लेंथ निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आता है, 4a, इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाती है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, द पॉइंट 8 square 280 lies on the parabola y square is equal to 4x for any real t, then these are called the parametric equation of the parabola, which is y square is equal to 4x। Now general equation of a parabola,
Let FHK be the focus and the line LX plus MY plus N equal to 0 be the directrix of a parabola. An equation of the parabola can be derived by the definition of the parabola. Definition क्या थी? If PF is equal to PM. PX5 be any point of the parabola, length of perpendicular PM from PX5 to the डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन बाय डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हमारे पास अगर ये वाली दी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो हमने पैराबोला इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वो क्या होगा सिंपल पॉइंट जो है ये एक्स वाई ही है यहाँ पर तो हम एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन और इसके कोफिशिएंट हमारे पास एल और एम आते हैं यानी ए की जगह पे एल और बी की जगह पे एम एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास पी एम आ गया लेकिन ये हमने इसको पीएम को किसके ऊपर रखना है पीएफ के और एफ हमारे पास एच और के है यानी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बोथ साइड्स पे is an equation of the required parabola as second degree equation of the form अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह की कोई सेकंड डिग्री इक्वेशन बनेगी where either A or B equal to 0 but not both equal to 0 represents a parabola. The equation can be analyzed by completing the scale. हम इसको कंप्लीट द स्केयर से हम इसकी फॉर्म बना सकते हैं y स्केयर इक्वल टू 4ax x स्केयर इक्वल टू 4ay अप टू सो ऑन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पढ़ी थी वहां पे और इस इक्वेशन में क्या फर्क है वहां पर a और b दोनों इक्वल टू 1 होने चाहिए देन हमारे पास जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है सर्कल को और यहाँ पर हमारे पास a और b डिफरेंट है लेकिन इनमें से किसी एक को 0 होना जरूरी है दोनों को नहीं किसी एक को ठीक है या तो a 0 होगा तो b y स्क्वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी या अगर b 0 है तो फिर ax स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला. नेक्स्ट देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोलास. अब इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं देयर आर other choices for the focus and directrix which also give standard equations of the parabola if the focus lies on the y axis. See this figure, focus lies on y axis with coordinates f 0a and directrix of the parabola. देखिए जब हमारे पास फोकस ऐसे होता है तो डायरेक्ट्रिक्स इसके बिल्कुल इसके वर्टेक्स के अपोजिट होता है ठीक है ना जहाँ पे ऐसे है तो इसका वर्टेक्स के अपोजिट अगर यहाँ पे a है तो नीचे हमारे पास माइनस ए होगा लेकिन माइनस से क्या y इज इक्वल टू माइनस ए इसकी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आ जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वेशन ऑफ द इसकी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन होगी देन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या आ जाएगी इसमें जिसमें आपके पास पैराबोला की ओपनिंग अपवर्ड है तो हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. Now if the focus is 0 minus a यानी हमारे पास जो इसकी ओपनिंग है पैराबोला की वो डाउनवर्ड हो तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हमारे पास y की फॉर्म में आएगा y इज इक्वल टू प्लस है यानी इसके ऑपोजिट होगा then directrix is the line y is equal to a then equation of the parabola हमारे पास क्या आ जाएगी अपवर्ड होगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay डाउनवर्ड होगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay. ओपनिंग होता है पैराबोला इज अपवर्ड इन द केस ऑफ दिस यही आपको बताया कि इसमें आपके पास अपवर्ड है ओपनिंग इसमें आपके पास डाउनवर्ड है ओपनिंग. If the focus of the parabola f a minus a 0 and directrix is the line x is equal to a देखिए जब हमारे पास यहाँ पर माइनस ए इसका फोकस है तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगा चलिए हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास कहाँ आ जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ये होगी डायरेक्ट्रिक्स और इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस ए हो जाएगा ठीक है जी x is equal to plus a इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तो यही यहाँ बता रहे हैं if the focus of the parabola is f minus a 0 and its directrix is the line x is equal to a then equation of the parabola हमारे पास क्या आ जाएगी जब इस तरफ था हमारे पास पैराबोला की ओपनिंग फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फिर हमारे पास क्या था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जब आपके पास सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी ओपनिंग है then y square is equal to 4 minus 4ax इसकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी. The curve is symmetric with respect to x-axis and lie in the The curve is symmetric with respect to the x-axis and lies in the second and third quadrant. Only opening of the parabola is to the left as shown. देखिए जब हमने किसी भी कर्व की सिमेट्रिक निकालनी होती है कि किसके अबाउट सिमेट्रिक है तो हमने उसका रिफ्लेक्शन या इमेज ही देख ले जैसे आप यहाँ पे तो मिरर पड़ा हुआ है जो इतना जिस तरह का ग्राफ आपका ऊपर बन रहा है वैसे ही ग्राफ आपका नीचे बनेगा तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिक अबाउट किसके एक्सिस के सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है.
फॉर एग्जाम्पल इस वाले को भी देखें, ये भी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस आ रहा है, जिसमें आपका जितना आपका अपवर्ड बन रहा है ग्राफ उतना ही आपका नीचे बन रहा है। अगर हम इस वाले को सिमेट्रिक देखें कि ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है, यानी जो जितना जिस तरह का ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है ऐसा ही आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बना है, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इस वाले को भी देखें, सिमेट्रिक अबाउट आपके पास वाई एक्सिस है, लेकिन आपका जिस तरह का ग्राफ थर्ड में है इसी तरह का आपका फोर्थ में बना है। तो सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है वो आप बता सकते हैं ग्राफ को देखकर। ग्राफ द पैराबोलास, देखिए ग्राफ बनाने का तरीका आप इससे पहले बहुत से जगहों पे पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर के भी शुरू के चैप्टर्स में आपने ग्राफ ड्रॉ किया है। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही आपने ग्राफ बनाना है जिस तरह बाकी आप इक्वेशंस को बनाते रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज जो नोट करनी है वो ये कि अगर हम वाई यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे स्केयर आ रहा है और राइट साइड पे आपके पास एक्स है, लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड पे वाई स्केयर है, यानी एक्स की एक वैल्यू के लिए हमारे पास वाई की 2 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, जब एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की 2 वैल्यूज आ रही हो तो इसका मतलब है कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस आ रहा है। The curve passes through the origin x is equal to 0 and जिनकी x को 0 पुट करेंगे तो y भी 0, इसका मतलब है कि ये पास किस में से कर रहा है, ओरिजिन में से। यहाँ से आपको ये भी पता चल सकता है कि हमारे पास नेगेटिव हो, यहाँ पे हम x is equal to नेगेटिव क्वांटिटी तो y स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट आपके पास इमेजिनरी नंबर आता है। इट मींस इफ x is negative then y square is negative so y is imaginary, so no portion of the curve lies on the left of the y axis, यानी y की नेगेटिव क्वांटिटी के लिए हमारे पास इसके ऊपर लेफ्ट हमारे पास कोई ग्राफ नहीं आएगा क्योंकि इमेजिनरी वैल्यूज आती हैं। y also increases numerically so that the curve extends to infinity and lies in the first and fourth quadrant opening of the पैराबोला इज टू द राइट ऑफ द वाई एक्सिस। देखिए हमने ग्राफ को देख के हम उसका वर्टेक्स ही उसकी इक्वेशन को देख के हम उसका वर्टेक्स ही बता सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किसके अबाउट सिमेट्रिक है और कहाँ पे इसकी वैल्यूज किस किस क्वाड्रेंट में लाई करती हैं। यही हमारे इनकी हेल्प से हम उनको ग्राफ पैराबोला का इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ स्मिथ समरी ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोलास, यहाँ पर कुछ समरी है जो हमने डिस्कस की है ग्राफ तक, यानी किस तरह का ग्राफ होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसका फोकस कहाँ होगा, उसकी डायरेक्ट्रिक्स कैसे होगा, वर्टेक्स क्या होगी। चलिए हम बजाय इसके कि हम कॉलम 1 से इसको स्टार्ट करें, कॉलम 1 को हम रो 1 से स्टार्ट करें, हम इसके लास्ट रो पे चले जाते हैं, यानी ग्राफ से स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पैराबोला का ग्राफ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये सिमेट्रिक अबाउट किसके है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। नेगेटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू कोई भी नहीं है, यानी हमारे पास नेगेटिव x की वैल्यू हम ले नहीं सकते, इसलिए हमारे पास सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये ग्राफ लाई ही नहीं करेगा, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ में लाई करेगा। तो हमारे पास क्या इसकी इक्वेशन बनेगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसका हमारे पास ये देखें कि यहाँ पे x को अगर 0 पुट करते हैं तो y भी 0, इसका मतलब है इसका वर्टेक्स एट 0 0 है, वर्टेक्स एट 0 0। फोकस हमारे पास यहाँ पे जब 0 0 है तो हमारे पास डेफिनेटली फोकस हमारे पास a0 होगा। a कोई हमारे पास कांस्टेंट नंबर है जो भी यहाँ पे ग्राफ में आपको वैल्यू दी होगी। अब अगर फोकस आपके पास a0 है तो हमारे पास डायरेक्टली से इक्वेशन इसके ऑपोजिट है, ओरिजिन से ऑपोजिट। अगर यहाँ तक a है तो ये यहाँ से यहाँ तक माइनस a होगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस a। तो एक्सिस हमारे पास क्या है, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो पूरे एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आ गई, एक्सिस भी आ गया। तो लेटेस्ट रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स में यही फर्क है कि लेटेस्ट रेक्टम की जो इक्वेशन होती है वो डायरेक्ट्रिक्स के सिर्फ साइन चेंज होता है, यानी अगर x इज इक्वल टू माइनस है तो लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस है। क्यों लेटेस्ट रेक्टम को हम ऑपोजिट साइन कह रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि लेटेस्ट रेक्टम क्या है, परपेंडिकुलर कॉर्ड जो कि फोकस में से पास हो, फोकल कार्ड, ऐसी फोकल कार्ड जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ पैराबोला पे, तो वो लेटेस्ट रेक्टम कहलाता है। तो डेफिनेटली हमारे पास इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू a ही आएगी। या आप यहाँ भी कह सकते हैं कि जो फोकस के होंगे वही हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू a है, तो x इज इक्वल टू a। अब सेकंड कॉलम पे चलते हैं, इसमें हम ग्राफ लेफ्ट साइड के इसकी ओपनिंग जो है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो डेफिनेटली हमारे पास देखिए x की हमारे पास जो साइड है इसकी ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब x की वैल्यूज डेफिनेटली नेगेटिव है, यानी और सिमेट्रिक अबाउट आपके पास क्या है, y एक्सिस है, यानी x की एक वैल्यू के लिए y की आपके पास 2 वैल्यूज आ रही है, लेकिन यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यू नहीं हम ले सकते,
क्योंकि अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो फिर हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी y की वो इमेजिनरी आ जाएंगी, क्योंकि इस तरह के में आपकी इक्वेशन जो है ना वो y इक्वल टू -4ax होती है। तो x की वैल्यू हमारे नेगेटिव लेंगे तो y पॉजिटिव होगा और हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो रियल नंबर्स आएंगे, इमेजिनरी नहीं आएंगी। सो यहाँ से हमारे पास जो अब आपका लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड पे अगर ग्राफ है मीन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन y इक्वल टू -4ax आ जाएगी। और यहाँ पे अगर इसका फोकस जो है क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन है एज अ -a0 होगा इसका फोकस, और इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है, x को 0 पुट करें y भी 0, इसका मतलब वर्टेक्स डेफिनेटली हमारा 0 0 ही है, ओरिजिन है। और इसका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, अगर यहाँ पे फोकस -a पे है तो डायरेक्ट्रिक्स इसके अपोजिट इतने ही फासले पे होगा, यानी x इज इक्वल टू पॉजिटिव a, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। और एक्सिस आपके पास क्या, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब पूरे एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। और लेटेस्ट एक्टम क्या है, क्योंकि फोकस -a पे है तो ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक ये लेटेस्ट एक्टम कहलाती है, तो x इज इक्वल टू -a इज द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट एक्टम। थर्ड कॉलम को देखिए, हमारे पास अब अपवर्ड इसकी ओपनिंग है पैराबोला की। अपवर्ड ओपनिंग है, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट किसके है, y एक्सिस के सिमेट्रिक है। जब y एक्सिस के सिमेट्रिक है इसका मतलब x के इक्वल टू 4ay की इक्वेशन होगी पैराबोला की। और यहाँ पे y की वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव हम y को वैल्यू देंगे तो हमारे पास x जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो y की पॉजिटिव वैल्यू की वजह से हमारे पास इसका जो ग्राफ है पैराबोला का वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, y पॉजिटिव की वजह से। तो इसका फोकस क्या है, x 0 है, 0 क्योंकि y एक्सिस पे है, और y की वैल्यू a होगी, यानी फोकस 0a है। प्रैक्टिस इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा, जिस तरह यहाँ पर अगर y इक्वल टू a पे फोकस है 0a पे, तो हमारे पास ये y इक्वल टू -a इसकी प्रैक्टिस होगी, 0 0 इसका वर्टेक्स होगा। एक्सिस इसका हमारे पास क्या है, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0 है। लेटेस्ट एक्टम क्योंकि ये पास हो रहा है फोकस में से ऐसे, तो हमारे पास y इक्वल टू a इसका होगा, यहाँ पे x नहीं होगा बल्कि y इक्वल टू a। फोर्थ इसका बिल्कुल अपोजिट यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो सिर्फ यहाँ पे 4a पॉजिटिव की जगह पे -4a लग जाएगा। जब भी आपके पास पैराबोला का ग्राफ दिया हो तो हम इसकी इक्वेशन सारी आपको आनी चाहिए, इसकी सारी फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वर्टेक्स वर्टेक्स क्या है, एक्सिस और लेटेस्ट सेक्टम क्या है, और रिवर्स प्रोसेस यानी अगर आपको इक्वेशन का पता है तो आप इसको इन सारी बातों का पता होना चाहिए। नाउ एग्जांपल 1 हम डिस्कस करते हैं। एनालाइज द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y एंड draw its ग्राफ। आपके पास यहाँ पर जो भी आपको पैराबोला को एनालाइज करना है, एनालाइज का मतलब क्या है कि आपने इसका फोकस बताना है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है, लेटेस्ट सेक्टम क्या है, ये सारी बातें जो अभी हमने समरी में डिस्कस की हैं वो सारी चीजें हमने बतानी है, उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो आपने इसको बेसिकली एक्स के इक्वल टू, यहाँ पे देखे ना ये होगा y में आ रहा है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, तो ये आपने इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन जो है इस फॉर्म की, उससे आपने कंपेयर करना है। तो ये हमने किससे कंपेयर करना है, एक्स के इक्वल टू -4ay, क्योंकि माइनस है साथ, -4ay से कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास आ जाएगा 4। A4 है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम आपको ये पता है कि x के इक्वल टू -4ay हो तो आपके पास डाउनवर्ड इसकी ओपनिंग होती है पैराबोला की। तो यहाँ पे हमारे पास डाउनवर्ड ओपनिंग की वजह से इसका जो फोकस होगा वो 0 -a होगा, ठीक है, 0 -4 इसका फोकस है। सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इसकी क्या होगी, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है तो पूरे y एक्सिस की इक्वेशन क्या आती है, x इक्वल टू 0, इसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला होगी। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा हमारे पास, क्योंकि कहाँ से पास हो रहा है इसमें, इसकी फोकस में से, तो पैरेलल किसकी है, x एक्सिस के, लिहाजा इसकी इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -4। और इसके ऊपर टेंजेंट कहाँ होगी, टेंजेंट आपके पास एक्स एक्सिस बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0 इसकी टेंजेंट। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम आपके पास 4a आता है, जो कि आपके पास 4 × 4 यानी 16 आ जाता है। सो आपने इस तरह से पूरे का पूरा इसका जो मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम तो बताई है, लेकिन इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम नहीं बताई, वो आप बता सकती हैं जिस तरह मैंने आपको अभी बताई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, find an equation of parabola whose focus is f -3 4 and directrix is this one.
देखिए, अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी दी हुई है और फोकस भी दी हुई है, तो आप वही इसकी जो डेफिनेशन थी हमारी पैराबोला की, उसमें पुट करके तो आप इक्वेशन पैराबोला की वो सिंपल निकाल सकते हैं, यानी पी एफ इजिकल टू पी एम से। पी आपके पास कोई जनरल पॉइंट है जो कि आपका एक्स वाई है। आप इस तरह से लिखें, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी एम फ्रॉम पी एक्स वाई टू द डायरेक्ट्रिक्स। ये आपके पास इक्वेशन है, यहाँ पे ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे -4 है। पीएम निकाल लिया और पीएफ इजिकल टू पीएम, और दोनों साइड पे स्केयर करें, और पीएफ आपने वही डिस्टेंस फार्मूले से कैलकुलेट किया, इसको इक्वेट किया। बाकी आपकी सिंप्लीफिकेशन है, ये देखें आपके पास वही इक्वेशन आ जाती है, ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस ये सारा एक्स वाई, और ये सारे का सारा क्या आ जाएगी, इज एन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पैराबोला। एग्जांपल 3, इसमें एनालाइज करना है एंड इट्स ग्राफ। एनालाइज तब भी आएगा तो आपने इसमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी इसकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला से आपने इसका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसकी एक्सिस, लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ, ये सारा कुछ आपने बताना होगा। तो इस ये जो भी आपको इस तरह की जनरल फॉर्म दी हो, तो पहले आपने इसका फॉर्म बना लें कि एक्स के इजिकल टू 4a y वाली आपके पास है, ये y के इजिकल टू 4a x है, टू सो ऑन। तो इसके कंप्लीटिंग द स्केयर कीजिए, x माइनस 2 होल स्केयर इजिकल टू 3 इंटू वाई माइनस 3। देखिए ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ही है, यानी x के इजिकल टू 4ay। लेकिन x यहाँ पे x माइनस 2 आ रहा है, तो हम इसे कैपिटल x लिख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली x माइनस एच होल स्केयर आ रहा है, यानी यहाँ पे जो हमारे पास इसका जो वर्टेक्स आ रहा है वो असल में 0 0 नहीं है, यानी हमारे पास वर्टेक्स एच और के की फॉर्म में आ रहा है। तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं आगे। पहले हम इसे कंपेयर करते हैं, लेट x माइनस 2 को कैपिटल x पुट कर दें और y माइनस 3 को कैपिटल y। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या हो जाती है, x के इक्वल टू 3y। जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें उसके साथ, तो 4 है y की जगह, तो हमारे पास y की जगह पे -3/4 आ जाता है। ये किस तरह आता है, विच इज पैराबोला हुज फोकस लाइज ऑन x एक्सिस। क्योंकि देखिए x के इक्वल टू 4 है y में, तो हमारे पास डेफिनेटली इसका फोकस x एक्सिस, x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस पे होगा। एंड हुज डायरेक्ट्रिक्स इज -3/4, तो यहाँ पे आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कंपेयर करके तो वो -3/4 होगा। ठीक है, 4ax होता है ना, तो 4a इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास a की वैल्यू 3/4, तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन -3/4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्या करते हैं, 10 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ 3, x को 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू -3/4 मींस हमारे पास x माइनस 2, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 15/4। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला 1 आपके पास क्या आ जाता है, 2 and 15/4। इस तरह ये आपको दिया हुआ है यहाँ। एक्सिस ऑफ 3 यानी 3 जो इक्वेशन थी उसकी एक्सिस आपके x इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल टू 2, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स जो है इसका ये 0 0 पे नहीं बल्कि 2 3 पे है। तो अब आप इसको यहाँ से आपका वर्टेक्स भी निकला है। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ 3, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे हम निकालते हैं, जो आपके पास फोकस होता है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। आपके पास ये फोकस अगर आपके पास यहाँ पर, ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फोकस आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने फोकस फाइंड आउट किया था 215/4। तो किसके अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है, अगर आपके एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर आप इसका देखें तो हमारे पास ये चीज बन रही है, ठीक है। तो अब आप इसका आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो y इज इक्वल टू -3/4, इसकी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर, इसके बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। यहाँ से y इज इक्वल टू -3/4 आपके पास, y माइनस 3 इज इक्वल टू -3/4, तो यहाँ से 9/4 आपके पास डायरेक्टली इक्वेशन आ जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ द लेटेस्ट सेक्टर ऑफ द पैराबोला 3 एंड आल्सो ऑफ 1 इज 3। The graph of 1 can easily be sketched as shown in figure। ये आपको फिगर दी है, इस तरह ग्राफ आप इसको बना सकते हैं। जब आपको इक्वेशन दी हो तो आप पॉइंट्स लेके इसका ग्राफ बड़ी सिंपली बना सकते हैं। एनालाइज आप इसको सिंपल कर चुके हैं। ठीक है, अब वर्टेक्स भी निकाल लेते हैं, फोकस भी निकाल लेते हैं, एक्सिस भी इसका आपको फाइंड हो जाता है, फिर आपको ग्राफ बनाना बहुत सिंपल हो जाता है। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो अभी हमने एग्जांपल्स की हैं उसमें आपने फाइंड आउट क्या करना था कि जो भी आपको पैराबोला की इक्वेशन दी हो तो आप उसको फोकस और वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका बेसिकली वही उसी की प्रैक्टिस करवाई गई है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिफरेंट पैराबोला की इक्वेशन, जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 एंड पार्ट 4 एक जैसे हैं और इस तरह से पार्ट 6 भी ऐसा है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाले जो है आपके पास सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट ऐसा है। तो हम इसमें से कोई एक पार्ट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला करेंगे और एक आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू
5y वाला। लेकिन डिस्कस हम सब करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इनके बिल्कुल एक ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इसका पार्ट 1 देखें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास असल में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो 4a की जगह पे हमारे पास 8 आ रहा है, यहाँ से हम a निकाल लेते हैं जो कि 2 है। x को 0 पुट करें, y भी 0, इसका मतलब है इसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 पे आ रहा है। एक्स ऑफ द पैराबोला क्या है, क्योंकि आपके पास इसकी इक्वेशन ये बनी, एक्स ऑफ पैराबोला आपके पास क्या मतलब सिमेट्रिक अबाउट आपके पास एक्स एक्सिस आ रही है, इसका मतलब है इसका एक्स ऑफ पैराबोला क्या है, y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, पूरी एक्स एक्सिस इक्वेशन आपके पास y 0 आ जाती है। तो फोकस आपके पास क्या है, a 0 जो कि आपके पास 2 है, तो 2 0 हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस a इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0 आपके पास डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आ जाएगी। यही चीजें हमने डिस्कस करनी थी, फोकस भी हो गया, डायरेक्ट्रिक्स भी हो गया, और इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला भी आपने डिस्कस कर लिया। सो ऑन। आप इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम नहीं उन्होंने पूछा तो आपको वो निकालने की जरूरत नहीं है, अगर वो पूछे तो आप निकाल सकते हैं। आपको तीन ही चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सेकंड पार्ट देखें, x के इक्वल टू -16y, यही है आपको। आप 4a को आपने 16 पुट किया और यहाँ से आपके a इक्वल टू 4 आ गया, लेकिन -16 सॉरी यहाँ पुट करें तो a इक्वल टू -4 होगा, तो फोकस आपके पास 0 -4 आ जाएगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड इसकी ओपनिंग आ जाती है। तो यहाँ से आप इसका डायरेक्ट्रिक्स जो है y इक्वल टू आपके पास 4 होगा, यानी y -4 इक्वल टू 0। इसका आपके पास जो थर्ड पार्ट है, इसमें आपने x के इक्वल टू 4ay, इसको फिर 4a इक्वल टू 5 से कंपेयर किया और a इक्वल टू 5/4, यहाँ से फोकस भी निकाला और वर्टेक्स भी अप टू 1 बिल्कुल सेम आपके ऊपर वाले दोनों पार्ट्स की तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स भी आपका फाइंड आउट हो जाएगा। सिक्स पार्ट भी आपका सिंपल है, फोर्थ पार्ट भी आपका सिंपल है। हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ में क्या है, x के इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 1। देखिए यहाँ पे आपके पास x माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y होना था, तो यहाँ पे y माइनस 1 आ रहा है, यानी h और k की जगह पे यहाँ पे एक 0 है और एक आपके पास 1 आ जाएगा। हम इसको जिस तरह एग्जांपल की थी हम उसको उसी तरह से सॉल्व करके उसकी निकाल सकते हैं। कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, x के इज इक्वल टू 4y। अब इसको कंपेयर कीजिए तो 4a इज इक्वल टू 4 के इक्वल आ रहा है, मींस a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वर्टेक्स अगर आप देखें इस इक्वेशन में तो 0 0 बन रहा है, इस ये जो नंबर 2 में है, अगर आप देखें द एक्स का पैराबोला आपके पास आ रहा है अलोंग y एक्सिस, क्योंकि x के इज इक्वल टू 4ay आ रहा है। वर्टेक्स 0 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x को आपने 0 लिया था, ये स्मॉल x इज इक्वल टू 0 और कैपिटल Y 0 का मतलब है y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 1। तो इसका वर्टेक्स क्या आता है, 0 1। इससे आपको फिगर में पता चल रहा है कि ये हमारे पास वर्टेक्स 0 0 पे नहीं बल्कि 0 1 पे आ रहा है। फोकस आपके पास a 0 आता है, तो a आपकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हुए हैं जो कि आपके पास 1 है, लिहाजा फोकस आपके पास 0 1 आ जाएगा। ठीक है जी, 0 1 आपके पास फोकस है। देन आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आपकी निकल आएगी और फोकस आपके पास y माइनस 1 पुट करेंगे इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, यानी आपका 0 2 फोकस आ जाएगा। सॉरी, आपके पास यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करके अब आपने a की वैल्यू निकालनी है फोकस के भी। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला आपके पास क्या है, y प्लस इक्वल टू 0, ये आपके पास 1 इसकी जगह पे 1 है, तो y माइनस 1 प्लस 1 इक्वल, यानी y इक्वल टू 0 आपका डायरेक्ट्रिक्स दिस वन। जो भी आपने पुट करना है अब आपने इसके मुताबिक आपने वैल्यूज पुट करके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनानी है। वो 6 पार्ट आप खुद करें। 7th पार्ट देखें जरा, इसको फिर डिटेल से देख लें। इसमें दोनों साइड्स पे यानी x कैपिटल X पे हमने पुट किया x माइनस 1 के इक्वल और कैपिटल Y को पुट किया y प्लस 2 के इक्वल। अब इक्वेशन आपके पास क्या बन गया, x के इक्वल टू 8y, a निकाल लिया 2, लेकिन ये a जो हमने a2 निकाला वो हमने सेकंड इक्वेशन का निकाला है जो हमने नंबर 2 पुट किया, जबकि हमने इसका निकाला है वो हम आगे जाके निकालेंगे। क्या आपका कैलकुलेट हो गया, लेकिन आपके पास पैराबोला आपके पास क्या बनती है, x के इक्वल टू 8y है, तो इसका मतलब है आपके पास अबाउट आपके पास y एक्सिस का सिमेट्रिक आ रहा है, लिहाजा इसका वर्टेक्स जो है यहाँ पर 0 0 के वर्टेक्स अगर हो तो इसके मुताबिक हम सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 0 पुट करें इसके मुताबिक तो वो x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन के मुताबिक तो 0 0 बन रहा है ना वर्टेक्स। तो इसमें भी y प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास असल में इसका वर्टेक्स आ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 1 आता है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 1 है, 1 माइनस 2 इसका वर्टेक्स आ जाता है। इस तरह से फोकस हमारे पास 0 a था
तो जो कि 0 2 बनता है, किस इक्वेशन का बनता है? इस वाली नंबर 2 का, लेकिन हमने तो इसका निकालना है, तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल Y की जगह y+2 पुट करें, यहाँ स्मॉल y की वैल्यू आप निकालिए 0 फोकस के लिए, और x 1 आता है, यानी फोकस आपके पास आता है 1 0। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या हो गया? y+a = 0, y की जगह पे y+ जो भी वैल्यू आपने पुट की है, y की जगह पे आपके पास क्या आती है? y+2। यहाँ y की जगह y+2 +2 यानी y+4 0 is the डायरेक्ट्रिक्स equation of the given parabola. 8th पार्ट में y = 6x² - 1 को पहले x² को लेफ्ट साइड पे ही होना चाहिए, स्क्वायर वाली फॉर्म, तो आपने इसको ये वाली फॉर्म बना लिया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल ऊपर वाले पैटर्न पे। 9th पार्ट देखें, ये इसको पहले फॉर्म बनाएं, y² स्क्वायरिंग किया, y² = 4x की फॉर्म बन रही है, लेकिन यहाँ पे देखें कैपिटल Y को लिखेंगे y-1, और कैपिटल X को लिखेंगे x+9, और अप टू सो ऑन, ये बिल्कुल वो वैसे का वैसा ही है जैसे हमने इससे पहले वाले किए हैं। 10th पार्ट भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप मैंने एग्जांपल जो इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने कहा था इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने ड्राइव की थी, आपके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बल्कि फिफ्थ तक 5 के 5 पार्ट ऐसे हैं जिसमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हो, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे ड्राइव करनी है। पहले 5 पार्ट ऐसे हैं जिसमें आपको 2 चीजें गिवन है, एक फोकस और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स, या फोकस और वर्टेक्स। पहले हम 3 में कर लेते हैं, 3 में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स है, इनमें से हम तीनों में से कोई तीनों में से कोई एक अच्छा डिस्कस कर लेंगे तो 3 पार्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम 4th पार्ट डिस्कस करेंगे वर्टेक्स और फोकस के लिए, फिर हम आगे चलेंगे। पहले हम क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट ही अटेम्प्ट करते हैं। इसमें है फोकस दिया हुआ है -3 1, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या दी हुई है? x = 3, यानी 3 को इस साइड पे ले जाएंगे, x - 3 = 0 होगी। हमने निकालना क्या है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला को आपको पता है डिफाइन करने का क्या तरीका है? pf = pm होना चाहिए, तो f आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपने फाइंड आउट आपने कर ली। यहाँ से P आपने कोई जनरल पॉइंट लेना है जो कि xy, लेट pxy be any point on the parabola, then pf = pm, pf = perpendicular distance of pxy from directrix। बिल्कुल उसी डेफिनेशन में पुट करके तो आपने इसको सिंपलीफाई करना है स्क्वायर करके, तो आपका फर्स्ट पार्ट ऐसे है, सेकंड भी ऐसे है, थर्ड में भी आपने ये फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स, वही pf = pm, और यहाँ से आपने इसको इक्वेशन बना ली। अब हम आते हैं 4th पार्ट में, इसमें फोकस और वर्टेक्स दिया हुआ है। फोकस आपके पास 1 2 और वर्टेक्स आपके पास क्या है? 3 2। Focus and vertex implies the axis of the parabola is parallel to x-axis and opening to the left side. Therefore, equation of parabola with vertex 3 2 कैसे पता चलता है? देखिए वर्टेक्स हमारे पास 3 2 है। 3 2 का क्या मतलब है कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वर्टेक्स आ रहा है, और फोकस भी इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि फोकस एंड वर्टेक्स implies that axis of parabola is parallel to x-axis. Definitely x-axis के parallel इसका axis होगा, और ओपनिंग इसकी लेफ्ट साइड पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी आपको नजर नहीं आ रही x की। Therefore equation of parabola with vertex 3 2 3 2 अगर आप वर्टेक्स होता है, हमारे पास क्या बन जाती है? x - h और y की जगह पे y - k, यानी y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू x - 3। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाती है यहाँ से। ठीक हो गया? तो हमने इसको माइनस क्यों लिखा? हमारे पास वो जो समरी हमने आपको पूरी बना के दी थी एक टेबल की फॉर्म में, तो वहां से आप कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास इसकी जो इक्वेशन है वो इस तरह की बनेगी। अब इक्वल डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, तो यहाँ से आपने इसका डिस्टेंस निकाल ले। 3 - 1, 3 आपके पास 3 और 2 आपके पास फोकस है, और सॉरी वर्टेक्स आपके पास क्या है? 3 and 2, और फोकस आपके पास 1 2 है। तो इनके दरमियान अगर जो डिस्टेंस होगा वो a निकलेगा। ऐसे ही होता है ना? आप फिगर को ध्यान में लाइए जरा पैराबोला की, उसमें आपके पास a क्या है? वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस जो हम a कहते हैं उसको, तो यहाँ से आप a कैलकुलेट हो जाए। अब इस a की वैल्यू आप इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी पैराबोला की? y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। यानी हमारे पास इस पूरे में सिर्फ a ही अननोन था, जिसके लिए आपने क्या किया? डिस्टेंस निकाल दिया वर्टेक्स का फोकस के साथ, तो वो a कैलकुलेट होके तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे।
5th पार्ट देखिए इसका, सॉरी 7th पार्ट देखिए, फिर बिल्कुल सेम ऐसे ही है। 7th पार्ट में देखिए 7 में डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है और वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास y माइनस सी इक्वल टू 0, यहाँ से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपका पास जो पैराबोला है वो किस टाइप का होगा। y पे इक्वेशन दी हुई है, इसका मतलब है कि या तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पैराबोला। वर्टेक्स 2 2 है, यानी x भी 2 एंड y भी 2, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्टेक्स इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। This x parabola is parallel to y-axis है because directrix is parallel to x-axis. ये x-axis भी parallel है, इसका मतलब definitely y-axis parallel है and opening is downward. Opening is इसकी downward कहाँ से पता चलता है? यहाँ से पता चलता है कि y is equal to 3 पॉजिटिव आ रहा है डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, तो डेफिनेटली वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ से अब आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या की, h और k अगर इसके वर्टेक्स हो तो x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y माइनस k, तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया। a डिस्टेंस क्या है, वर्टेक्स, इसका पेरिपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स टू फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। 8th पार्ट में भी आपके पास क्या था, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स का लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इज 8, ओपन्स डाउनवर्ड, यहाँ पे आपको ओपन्स डाउनवर्ड दे दिया गया है। अब आप यहाँ पे देखिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 1, लेटेस्ट सेक्टम 4a होता है आपको फार्मूला, यहाँ से आप 8 अगर दे दिया तो a कैलकुलेट यहाँ से हो जाएगा। पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड, कंसीडर वर्टेक्स h1, क्योंकि आपको यहाँ पे -1 की h -1 अगर हो तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। 9th पार्ट देखिए, एक्सिस ऑफ पैराबोला y इक्वल टू 0, लेट h के आपको वर्टेक्स का नहीं पता, वो आपने h के पुट किया, देयरफॉर बिकॉज़ इट लाइज ऑन x एक्सिस, सो k इक्वल टू 0 x एक्सिस पे लाई कर रहा है, गिवन है। इस k को 0 आपको पुट करके आपके पास इक्वेशन ये वाली बन जाती है, ठीक है जी। बिकॉज 2 1 लाइज ऑन पैराबोला, सो हमारे पास यहाँ पुट करके तो हमारे पास यहाँ से एज की वैल्यू हम फाइंड आउट, एज की फॉर्म में हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है थर्ड, और एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से एज और ए में आ रही है। सेकंड और थर्ड को फर्स्ट और सेकंड को सॉरी पहले आप कर देख लीजिए, तो आपके पास इसको रेशो लेंगे तो यहाँ से आपके पास एज की वैल्यू आ जाएगी और एज की वैल्यू किसी में एक में पुट करके आपके पास ए भी आ जाएगा। एज और ए निकला तो रिक्वायर्ड इक्वेशन भी आपकी फाइंड आउट होगी। 10th पार्ट देखें, एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, देन पॉइंट 0 3 3 4 एंड 4 ऑन लाई ऑन द ग्राफ। जी ये सारे पॉइंट जो है ना ग्राफ पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है ये सारी के जो पॉइंट्स हैं ये डेफिनेटली कोई जो पैराबोला की इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगी। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस k में पुट करके तीनों पॉइंट्स इसमें पुट करके हमारे पास इतनी इक्वेशंस आ जाएंगी। हमें निकालना क्या, हमें h भी निकालना है, ए भी निकालना है और ए भी निकालना है। तो इक्वेशन आपके पास कितनी आती है, 1 2 एंड 3, 3 अननोन्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं या आप इसको एक में से वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एक में से वैल्यू एक पुट कर निकाल के दूसरे में पुट करके तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ए एच और के की वैल्यू जब निकल आएंगी तो इसमें पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे पुट करके तो आपके पास इसकी डेफिनेशन में पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये भी इक्वेशन ही निकालनी है। हैविंग इट्स फोकस एट द ओरिजिन, अब फोकस जो है ओरिजिन के ऊपर है, एंड डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो डेफिनेटली हमारे पास y की फॉर्म में आएगी और फोकस जो है वो आपका कहाँ लाई करेगा, आपका डेफिनेटली कहाँ लाई करेगा, उन्होंने दिया हुआ है फोकस, तो उन्होंने ओरिजिन, अच्छा जी फोकस और ओरिजिन पे दिया हुआ है। डायरेक्ट्रिक्स जो अगर एक्स एक्सिस के आपके पैरेलल है तो डेफिनेटली वो y की फॉर्म में आएगी। When directrix is parallel to x axis, focus 0 0 be the focus of the equation of directrix and y is equal to h is parallel to y axis. यहाँ से y minus h equal to 0 हमने निकाल दी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन। P कोई एनी पॉइंट है पैराबोला का, डेफिनेशन आप वही निकालें, PF is equal to perpendicular distance of P from the directrix, पुट करने से आपके पास ये इक्वेशन आ गई। देखिए हम बार बार वही डेफिनेशन को यूज करते हैं, वही जो समरी जो हमने टेबल में डिस्कस की थी उसी को यूज करते हुए हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट, y एक्सिस के अगर पैरेलल होगा डायरेक्ट्रिक्स तो फिर आपके पास y एक्सिस के पैरेलल होगा तो x इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आएगी। तो x इज इक्वल टू h ले लें,
0 0 द फोकस ऑलरेडी गिवन है, तो x माइनस एच इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर वही आपके डेफिनेशन पुट की, यानी पी एफ इज इक्वल टू पी एम, और यहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाती है। Question number 4. Show that an equation of the parabola with focus at a cos alpha, a sin alpha and directrix, ये directrix equation है, is x minus x sin alpha minus y cos alpha whole square is equal to 4a x cos alpha plus y sin alpha। तो आपने ये चीज आपने शो करनी है, यानी आपको आंसर ऑलरेडी गिवन है। फोकस आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए क्या मुश्किल है, आपको पॉइंट एफ पी दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन पी आपने जनरल पॉइंट खुद देना है, यानी पी एफ इज इक्वल टू पी एम, perpendicular distance of p from the डायरेक्ट्रिक्स। तो वही आपने फार्मूला पुट किया, यहाँ पे इनको आगे सिंप्लीफिकेशन है, यानी आपने स्क्वायर करना है और फिर इसके टर्म्स को स्क्वायर को खोलना है, एक जैसी टर्म्स को इकट्ठा करना है, एक्स स्क्वायर टर्म्स को इकट्ठा करना है, वाई स्क्वायर की टर्म को इकट्ठा करना है, फिर ए स्क्वायर को आपने इकट्ठा करने के बाद ये टर्म्स स्क्वायर करें और ये वाली फॉर्म बना लें, इक्वेशन ऑफ अ स्क्वायर्ड पैराबोला आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक थ्योरम डिस्कस करते हैं। The theorem, the point of a parabola which is closest to the focus is the vertex of the parabola। देखिए यहाँ पे अगर आप थ्योरम पे ना भी जाएं, फिगर देख लें, कोई भी पैराबोला चाहे आप किसी भी फॉर्म में ले लें, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लें, या y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax लें, या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay लें, या x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay लें, कोई भी लें, उसमें आप ये देखेंगे फोकस है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक ले लिया, ये फोकस, फोकस के पास ये पैराबोला है, पैराबोला का पाथ है, लोकस ऑफ पॉइंट होता है ना, पैराबोला की डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा। ये जो P है ये कहीं भी हो सकता है यहाँ पे, तो ये P अगर मूव करता है, फोकस से डिस्टेंस निकालते चले जाएं, तो यहाँ पर यानी वर्टेक्स पे आके इसका डिस्टेंस सबसे कम हो जाता है। जो जो ये ऊपर चलता जाएगा, फोकस से इसका डिस्टेंस ज्यादा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट भी यही है, the point of a parabola which is closest to the focus is the vertex of the parabola। तो हमने इसका प्रूफ कैसे करेंगे, लेट द पैराबोला भी, हमने x के इक्वल टू 4ay ले लिया, कोई एक पैराबोला के ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि आपने ये बराबर वाला लें, आप लेफ्ट राइट वाला भी ले सकते हैं। x के इक्वल टू 4ay, a is positive, ठीक है, with the focus at x f is 0a and pxy be any point of the parabola। pf निकालें, y plus a आ जाता है आपके पास, since y can take up only non-negative values, ठीक है, pf is minimum when y is equal to 0। तो हमने ये देखिए, हमारे पास अगर स्क्वायर रूट को देखें, स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू तो नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव होगी तो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। तो y की हम y वेरिएबल इसमें है, y को हम कौन सी वैल्यू दे सकते हैं, तो मैक्सिमम y की वैल्यू जो है वो हम 0 तक मिनिमम दे सकते हैं। हम इससे कम अगर 0 से माइनस पे जाएंगे तो हमारे पास ये pf जो है ये नेगेटिव यानी इमेजिनरी आ जाएगा, तो हमें नहीं चाहिए। सो हमें क्लोजेस्ट के लिए हमने मिनिमम y की वैल्यू पुट करनी है, तो वो हमारे पास y इज इक्वल टू 0 आता है, तो ये क्या है y प्लस a। तो ये हमारे पास इक्वेशन किसकी आ जाती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, यानी हमारे पास फोकस जितना फोकस से ऊपर है उतना नीचे, डेफिनेटली हमारे पास फिर वर्टेक्स जो पॉइंट a डिस्टेंस तक का जो पॉइंट है ये क्लोजेस्ट पॉइंट आता है फोकस से। एग्जाम्पल 4 है, a comet has a parabolic orbit with the sun at the focus। पहले तो कॉमेट समझ लेंगे क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि गैसेस से भी फॉर्म हो सकता है, या फिर आपके पास डिफरेंट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स से फॉर्म होकर कोई ऑब्जेक्ट बन जाता है जो कि रिवॉल्व करता है सन के गिर्द, ठीक है। और ये जो है ये जब वेरी क्लोज जाता है सन के, तो उसकी हीट को लेके बाजकर वो बर्न भी करता है, तो बर्न करने से उसकी एक दुम सी बन जाती है, रोशनी का लाइन सी, तो जिसको हम दुमदार तारा भी बोलते हैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कॉमेट हैज अ पैराबोलिक ऑर्बिट विद द सन एट द फोकस। सन कहाँ पर है, फोकस पे है। कॉमेट का जो ऑर्बिट है यानी जो रिवॉल्विंग वाला पाथ है वो पैराबोलिक है, ठीक है, तो इस पैराबोलिक जो ऑर्बिट है उसके फोकस पे सन है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, When comet is 100 million kilometer from the sun, जब जो comet जो है वो 100 किलोमीटर अवे होता है from sun, the line joining sun and the comet makes an angle 60 degree, right? यानी जब वो इतने किलोमीटर के फासले पर होता है सन से कॉमेट, तो लाइन फोकस सन को जो कॉमेट से मिलाती है वो कौन सा एंगल बनाती है, 60 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। हाउ क्लोज विल द कॉमेट गेट
टू द सन, सन के कितने क्लोज होगा, सन फोकस पे है, ठीक है। सन फोकस पे पड़ा हुआ हो और ये इसका पाथ हो कॉमेट का, तो हमने क्लोजेस्ट पॉइंट डेफिनेटली वर्टेक्स ही होएगा ना, तो वो हमने अभी थ्योरम भी पढ़ा, लेकिन अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब उन्होंने एंगल भी दे दिया हुआ है, ठीक है। Let the sun S be the origin if the vertex A of the parabola ZM has coordinates minus A0। ये देखें, ये हमारे पास ऑर्बिट है, इसका जो है पैराबोलिक ऑर्बिट है कॉमेट का, और सन जो है वो फोकस पे है, जो कि 0 0 हमने लिख दिया फोकस। और जब वो पॉइंट PXY पे होता है, जिसका डिस्टेंस भी उन्होंने बता दिया, कितना डिस्टेंस है, 100 बिलियन किलोमीटर, तो इसके सन के साथ 60 एंगल बनाता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री, और ये इसकी डायरेक्ट इसकी इक्वेशन आ गई, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स -a0 आपके किसके कोऑर्डिनेट्स है, ZM के, ठीक है। ये देखिए हमारे पास, सॉरी ZM हमारे पास क्या है, इफ द वर्टेक्स A of the parabola ZM has कोऑर्डिनेट्स -a0, देखिए ये हमारे पास ये ओरिजिन है, हमने इसका सन को जो फोकस है वो ओरिजिन पे लिया है, तो यहाँ पास यहाँ से यहाँ तक ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे -a0 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स के। देन तो इसका पैराबोला के आपके पास जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी, वो इससे जितना ये ए इधर था, यहाँ से यहाँ तक -a था, तो इससे आगे फिर -a, तो x इज इक्वल टू -2a, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाती है। इफ द कोमेट हैज at pxy, if the comet is at pxy, then ps is equal to pm। डेफिनेटली हमने डेफिनेशन ऑफ पैराबोला में यही पढ़ा था कि ps is equal to pf is equal to pm by definition। तो यहाँ आपके पास p के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं और इसकी इक्वेशन आपके पास है, इसमें पुट कर दीजिए, तो ps आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाता है। नाउ x प्लस 2a आपको डेफिनेशन जो आपको सॉरी जो गिवन है वो क्या है, इसका डिस्टेंस जो है वो आपके पास 100 मिलियन किलोमीटर है, जो आपने लिख दिया। The comet is closest to the sun when it is at a। Now x आपने निकालना है, ये आपका कोऑर्डिनेट, आपको डिस्टेंस देने हैं, x इज इक्वल टू r cos थीटा, r आपके पास ps बन रहा है, इसको पॉइंट को ड्रॉ करें यहाँ से यहाँ तक, तो आपके पास क्या आता है ps cos 60, तो यहाँ से x की वैल्यू आपने x प्लस 2a ओवर a, तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू जो है वो आ जाती है। Thus the comet is closest to the sun when it is 25 million kilometer from the sun। नाउ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं। इसमें क्या है, शो दैट द ऑर्बिट एट एनी पॉइंट P of the parabola is a mean proportional between the length of the lattice rectum and the abscissa of P। इससे पहले हम मीन प्रोपोर्शनल को डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन इसको अभी दोबारा क्वेश्चन को जब करेंगे तो आपको एक दो फिर डेफिनेशन आपको याद करने में आसानी हो जाएगी कि यहाँ पर क्या है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने y is equal to 4x, हमने इसका मीन प्रोपोर्शन लेना है किसका, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का, जिसको हमने क्या लिखा था, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो 4a होता है, ठीक है। और एब्सिसा ऑफ p क्या है, y, तो y is equal to 4x, इसको ब्रेक करें 4a ओवर y यानी ऑर्डिनेट इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ओवर एब्सिसा, तो ये हमारे पास ये मीन प्रोपोर्शनल बन रहा है, which implies ordinate is mean proportional between the lattice rectum and abscissa। क्वेश्चन नंबर 6, ये इसी से रिलेटेड है जो हमने अभी एग्जांपल की थी कॉमेट की। A comet has a parabolic orbit with the earth at the focus। वहां पे सन फोकस पे था, यहाँ पे अर्थ फोकस पे है। इसका वर्टेक्स जो है, फिर इसका मतलब है फोकस ओरिजिन इसका अगर यहाँ पर है फोकस पे है, तो अर्थ हम ले लेते हैं इसको ओरिजिन पे फोकस को यानी अर्थ को, तो इसका वर्टेक्स फिर लेफ्ट साइड पे। When the comet is 150,000 किलोमीटर from the earth, the line joining the comet and the earth किधर है, ये makes an angle 30 degree with the axial parabola, how close will the comet will come to the earth। तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, हमने एग्जांपल भी किया, अब एक क्वेश्चन भी एक डिस्कस किया है। यहाँ पर देखें, ये अगर आपके पास ओरिजिन है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसका वर्टेक्स जो है वो a0 होगा, और जितना यहाँ से यहाँ पे है -a0 होगा ना, तो यहाँ से या तो हमारे पास फिर यानी x इज इक्वल टू -2a, इसका डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन बनती है प्लस a इक्वल टू 0। ये फिजिकल टू पॉइंट को डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ से आपके पास नंबर 1 इक्वेशन तो ये आ जाती है।
अब आपको ये एंगल 30 दिया हुआ है, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, तो आपके पास यहाँ से एक इक्वेशन बन जाती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 150,000। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब आपके पास टू इक्वेशंस हैं। इन टू इक्वेशंस को यूज करते हुए हम इसकी जो है a की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने असल में क्लोजेस्ट पॉइंट निकालना है कॉमेट का अर्थ से, तो वो हमारे पास फोकस आता है, वर्टेक्स आता है जो कि a0 है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दे राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा cos 30 जो है वो OA ओवर OP आता है, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। अब या x की वैल्यू आप 3 में पुट कर दें तो आपके पास a का फाइंड आउट हो जाएगा। ये आपके पास सिंस a इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस एंड कैन बी नेगेटिव सो इट मस्ट बी पॉजिटिव, हम पॉजिटिव वैल्यू जो है इसकी ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला। देखिए जितने भी पैराबोला की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है पैराबोला की वो रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी। घरों में आपने टॉर्च तो अक्सर देखी होगी। टॉर्च को अगर आप खोल के उसका बाहर से ऊपर वाला हिस्सा जहाँ बल्ब लगा होता है अगर आप खोल के देखें तो वो ये कर्व पाथ होता है इस तरह से, और यहाँ पे शाइनिंग सरफेस होती है, बल्ब यहाँ लगा होता है। तो उसकी ये शेप क्यों बनाई जाती है? क्योंकि ये पैराबोलिक जो पैराबोला जो है इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो पाथ है ये इसमें रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। यानी हमें यहाँ पर अगर हम रोशनी रखते हैं फोकस पे तो ये जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके जब जाता है, जो पाथ पी आर जो उसका स्ट्रेट होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी, इसकी वजह से हमें रोशनी ज्यादा मिलती है। तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। A frequently used property of the parabola is its reflecting property. If a light source is placed at the focus, कहाँ पर? फोकस पे रखा जाए of the parabolic reflecting surface, then a light ray traveling from F to point P, अगर ये फोकस है यहाँ से P पे जाता है, on the parabola will be reflected in the direction P, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है, इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, ज्यादा रोशनी हमें दूर तक नजर आती है। Parallel to the axis of the parabola. The design of the searchlight, reflecting telescopes, and microwave antennas are based on reflecting property of the parabola. Another application of the parabola is in suspension bridge. ये तो ब्रिजेस आपने ट्रेवल करते हुए बहुत सी जगहों पे देखे होंगे, ये ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज जो आप देखेंगे ये भी आपको पैराबोला की फॉर्म में, इसकी जो वायर्स हैं वो आपको नजर आती हैं। तो ये क्यों नजर आती है? क्योंकि ये जो ये वाली जो शेप है ये इसमें इसका जो वेट है, इसके मैक्सिमम इसका टोटल वेट जो होता है ना, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इस पोजीशन, और इसमें फिर कैपेसिटी वेट को सहारने की बढ़ जाती है। देखिए अनदर एप्लीकेशन ऑफ द पैराबोला इज द सस्पेंशन ब्रिज। द मेन केबल्स आर ऑफ पैराबोलिक शेप। The total weight of the bridge is uniformly distributed along its length if the shape of the cable is parabolic. तो वो पूरे उसमें जो ब्रिज की जो होती है उससे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो ये हमारे पास इसमें फिर कैपेसिटी जो है वो बर्दाश्त करने की, वेट बर्दाश्त करने की बढ़ जाती है। केबल्स इन एनी अदर शेप विल नॉट कैरी द वेट इवनली, जो है वो कैरी नहीं करती। एग्जाम्पल 5 देखें, अब इसी से रिलेटेड है। A suspension bridge with weights uniformly distributed along length has two towers of 100-meter height above the road surface and are 400 meter apart. अब टू टावर्स हैं जो 400 मीटर अपार्ट है, तो हम इसके मिड को ओरिजिन ले लें तो यहाँ से यहाँ तक 100 होगा, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे सॉरी यहाँ से यहाँ तक 200 लेंगे तो ओरिजिन से लेफ्ट पे -200 आ जाएगा। जबकि इनकी हाइट कितनी है? उन्होंने कहा जी 100 मीटर हाइट है, तो यहाँ से यहाँ तक 100, यानी P और Q अगर हम इसका अपर एंड ले लें तो इनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास Q के 200 100 आ जाएगा और P के -200 100 हो जाएगा। हमने करना क्या है, केबल आप पैराबोलिक इन शेप, ये केबल हमने लगा दी पैराबोलिक शेप की, आर टेंजेंट टू रोड सरफेस एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज। ये सेंटर ऑफ द ब्रिज जो है इसके ऊपर टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, जो हमने इसका वर्ड कह दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द केबल। केबल की हमने हाइट निकाल दी है एट द पॉइंट 100 मीटर फ्रॉम द सेंटर। हमने इसकी हाइट निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द केबल्स एट अ पॉइंट 100 मीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है जी।
The parabola formed by the cables has A00 as vertex and focus on the y-axis. Definitely इसका focus यही y-axis पे कहीं होगा. So इसकी इक्वेशन पे क्या आ जाएगी? x k is equal to 4ay. The point आपके पास ये lies on the parabola, तो यहाँ पे इसमें x और y की जगह वैल्यू पुट करके a निकाले जो कि 100 है. Thus an equation of the parabola आपके पास क्या आ जाती है? x k is equal to 4ay. यहाँ पे a की जगह पे 100 पुट करें तो 400y आ गई इसकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला. To find the height of the cable when x is equal to 100, तो आप इसमें यहाँ पे पुट कर दें x is equal to 100, तो y is equal to 25. तो आपके पास the required height आ जाती है 25 मीटर. टोटल इसकी हाइट आ जाएगी केबल की. Now the question number 7 इसी से रिलेटेड है. Find an equation of the parabola formed by the cables of the suspension bridge whose span is a meter and the vertical height of the supporting toward is AM, and the vertical height of the supporting towards is BM. M mean meter. ठीक है जी, यहाँ पे A और B उन्होंने मीटर्स की फॉर्म में उन्होंने कोई दी है उनकी लेंथ. Consider equation of the parabola with vertex 0 0 x is equal to 4a dash y. Since P a by 2, क्योंकि उन्होंने पॉइंट यहाँ पे a लिया हुआ है टोटल, तो हमारे पास हाफ में a by 2 और इसकी हाइट जो है b हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगी, a by 2 हो जाएगी, तो क्योंकि टोटल a है. पॉइंट P जो है वो इस पे लाई करता है 1 पे, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास a डैश की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर ओवर 16b. अब इस a डैश की वैल्यू 1 में पुट करके x is equal to 4 into a square over 16by, which is the required equation of parabola. वो सिंपल क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 8 देखें. A parabolic arch has 100 meter base, इसकी बेस जो है 100 मीटर है, and height 25 meter. Find the height of the arch at the point 30 meter from the center of the base. यहाँ से यहाँ तक अगर 30 मीटर हो तो ये हमने हाइट निकालनी है y की. ठीक है, जबकि हमें यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक का y का जहाँ का फुट है, यहाँ तक हमें डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर दे दी है. क्योंकि अपर डायरेक्शन में पैराबोला x के इक्वल टू 4ay होगा. यहाँ पे आपको पॉइंट यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल 100 है तो ये मिड से यहाँ तक 50 हो जाएगा, और ये 25 भी दी थी है. इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन 1 को, क्योंकि पैराबोला पे लाई कर रहा है. a की वैल्यू यहाँ से निकल आई. a की ये वैल्यू जो है आप 1 में पुट करके तो आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है. When x is equal to 30, तो y की क्या वैल्यू, तो x की जगह पे 30 पुट कर दें, y की वैल्यू निकाल लें. यही आपकी रिक्वायर्ड हाइट थी. क्वेश्चन नंबर 9. Show that tangent at any point P of the parabola makes equals angle with the line PF and the line 2P parallel to the axis of the parabola. F big focus. These angles are called respectively angle of incidence and angle of reflection. देखिए मैंने आपको पहले जब रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला बताई है तो उसमें हमारे पास यही था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट भी बन रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बन रहा है. तो हमने यहाँ पे दोनों एंगल्स को शो करना है कि वो इक्वल है या नहीं. जब भी एंगल का जिक्र होगा तो डेफिनेटली हमने एंगल कैसे निकालना है, वो आपको स्लोप्स पता हो, दो लाइंस की स्लोप पता होंगे तो आप उनके बीच में एंगल निकाल सकते हैं. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए भी आपको टू स्लोप्स चाहिए होंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए भी टू स्लोप्स चाहिए होंगे. तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. पहले तो आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू 4ax. लेट px y p तो दिया, कोऑर्डिनेट्स आप खुद से ले लें. x1 y1 यानी पॉइंट होता है पैराबोला, तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी. अब स्लोप निकालने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाय dx निकालेंगे, तो एट पॉइंट x1 y1 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी 2a ओवर y. नाउ स्लोप ऑफ ps. ps क्या है आपके पास, फोकस अगर आपके पास a0 है तो फिर आपके पास p के पॉइंट x1 y1 हो तो आपके पास यहाँ की इनकी स्लोप आ जाएगी m2. m3 स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस है, तो आपके पास m3 इज इक्वल टू 0 हो गई. अब थीटा 1 कैलकुलेट करने के लिए m1 और m3 के दरमियान थीटा 1 अगर है तो आपने यहाँ से वही m1 माइनस m3 जो क्वेश्चन है आपने 4 में आपने ये फाइंड आउट किए थे, उस तरह से एंगल फाइंड आउट कीजिए. थर्ड आपके पास tan थीटा 1 की वैल्यू आ गई. थीटा 2 अगर एंगल हो तो फिर आपने m2 और m1 के दरमियान में अगर थीटा 2 एंगल है तो आपने यहाँ से एंगल निकाल लिया. देखें tan थीटा 1 की वैल्यू और tan थीटा 2 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है. इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल है.
तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगला लेक्चर जो है वो हम इसको इलिप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।